جہانپور میں ہر سال کی طرح رودکوہی کا سیلاب کر گیا برباد۔ تینوں رودکوہی کے دروں سے سیلاب کا سلسلہ تھم گیا۔ رودکوہی سیلاب کی بربادی کے نشان باقی رہ گئے۔ موزہ ڈھانڈلا کی بستی غلام حیدر میں بھی سیلاب نے تباہی پھیر دی۔ کپاس، چاول، جانوروں کا چارہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ سینکڑوں مکان سیلاب سے زمین بوس، لوگ بے گھر ہو گئے۔ انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی بے رخی پر متاثرین شکوہ کناں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ مشکل سے جان بچا کر محفوظ مقام پر پہنچے۔ سیلاب نے تباہ کر دیا، مدد کو کوئی نہیں پہنچا۔ راجنپور میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ریسکیو متحرک سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سیلاب متاثرین جان بچانے کی غرض سے کھمبوں پر چڑھ گئے تھے۔ واٹر ریسکیو ٹیموں نے لوگوں کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سیلاب میں پھنسے افراد نے ساری رات کھمبوں پر گزاری۔ راجنپور میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ریسکیو متحرک سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سیلاب متاثرین جان بچانے کی غرض سے کھمبوں پر چڑھ گئے تھے۔ روجان میں ڈیرہ دلدار میں نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بستی مغل خان کے سرکاری اسکول سمیت 50 گھر زیرآب۔ اسکول میں 3 فٹ پانی جمع، طلباء تعلیم سے محروم۔ نہری پانی سے گھر اور فصلیں زیرآب۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط کپاس اور پیاز کی فصلیں زیرآب۔ اطلاع کے باوجود محکمہ انہار نہ پہنچ سکا۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پور کرنے میں مصروف۔ متاثرین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل۔ جہانپور میں رودکوہی کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ علاقہ مکینوں کے گھر، مال مویشی اور گندم کو سیلاب کا پانی ملیا میٹ کر گیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر منتقل ہونے لگے۔ جہانپور میں رودکوہی کے سیلابی ریلوں نے ہنستے بستے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سیلابی پانی سے فصلیں تباہ، گھر ملیا میٹ ہو گئے۔ رودکوہی کا سیلاب علاقہ مکینوں کو کھلے آسمان تلے لے آیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کو نہ انتظامیہ پہنچی اور نہ ہی منتخب نمائندوں نے ان کی خبر لی۔ بستی ڈھانڈلے والا، بستی غلام حیدر ڈھانڈلا اور بستی مہر علی کو سیلابی پانی نے گھیر لیا۔ بھوک اور پیاس سے نڈال بچے، بوڑھے، خواتین کسی مسیح کے منتظر ہیں۔ لوگوں کے گھر، مال مویشی اور گندم کو سیلاب بہا کر لے گیا۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ سارا فصلیں لوٹ گئے، مال بال انہاں تن سارا سائیں کوئی نہیں تھیا۔ ساری تھوڑی ہیلپ کرو، تساں مہربانی کرو۔ گھر تھارے سامنے میں پیچھے فلاٹ بھی ہے، تساں دیکھ سکدو۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ سیاستدان ہم سے ووٹ لینے تو پہنچ جاتے ہیں مگر ہماری داد رسی کوئی نہیں کرتا۔ انتظامیہ سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کرے۔ سیلاب کا پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل رہا ہے۔ کم خشا نہیں رہ گئی، سارے رڑیں بڑھ گئے، مال لوٹ گئے، بال نکلے آ رہے آپ کھڑے کھڑو، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی شے، بال بیمارن ملے نکتے پان بخارن۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی مدد کے لیے فوری اقدامات کرے۔ منتخب نمائندوں کا بھی فرض ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ووٹرز کی داد رسی کرے۔ کیمرامین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال، روہی، جہانپور۔ میاوالی میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اہلکار ہر سطح پر مدد فراہم کر رہے ہیں۔ میاوالی میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اہلکار شہریوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے کوشاں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوید اقبال کہتے ہیں کہ 49 ریسکیو اہلکار دریا کے کناروں پر تعینات ہیں۔ فلڈ ریلیف کیمپس پر بھی ریسکیو اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں محصور ہونے والے افراد کو مدد فراہم کی گئی ہے۔ اس میں ہمارے جو ہے وہ 24 جو ریسکیورز ہیں وہ ریسکیو اپنا اگلے جو ہے کچے کے علاقے میں دریا کے کناروں پر اپنا کام کر رہی ہیں اور ہم نے 49 لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے۔ نوید اقبال کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ 300 کا سٹاف، 25 کشتیاں اور 22 ایمبولینسز موجود ہیں۔ بگڑتی سیلابی صورتحال میں لوگوں کو مشکلات سے نکالا جائے گا۔ ہمارے جو ہے میڈیکل ریلیف کیمپ میں بھی ہمارے لوگ تعینات کیے گئے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کے لیے، اور بوٹس کے اوپر آپریٹرز کے ساتھ جو ہے اپنے والنٹیئرز کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے ریلیف دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے کچا اور پہاڑی علاقوں کے مکینوں سے اپیل کی ہے کہ انتظامیہ کے الرٹ پر فوری عمل کریں تاکہ وہ مشکلات سے محفوظ رہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ ڈیرہ غازی خان میں سیلابی صورتحال کے دوران محکمہ لائف سٹاک بھی متحرک۔ محکمے کا عملہ جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کروانے اور ان کی دیکھ بھال میں پیش ہے۔
डेरा गालिब खान में हालिया बारिशों से रोदकोहियों में तुगयानी, जानवरों को सैलाबी रेलों से बचाने, महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाने और उनकी देखभाल के लिए महकमा लाइव स्टॉक मुतहर्रिक। डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक डॉक्टर महमूद एजाज का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हालिया सैलाबी सूरत हाल के दौरान 1700 बड़े 12,000 छोटे जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। हम वेल अवेयर थे पहले ही, हमने 30% कोटा जो मेडिसिन का था वो फ्लड के लिए हमने स्पेयर करके रखा हुआ था, जो हमने टाइमली अपने फ्लड सेक्टर पे शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर महमूद एजाज ने कहा कि जानवरों के लिए 35% अद्वियात का कोटा रखा हुआ है। जानवर को रेस्क्यू करने के लिए 135 टेंट और 369 डिस्पेंसरियां बनाई हैं। हमारे तकरीबन 369 हमारे पास वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैं। इसके अलावा हमने 135 फ्लड कैंप लगाए हुए हैं, जो जिस पे हमारे तकरीबन 300 से कुछ लोग हैं जो छोटे बड़े मुलाजमीन हैं वो डिप्यूट किए हुए हैं। डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक डॉक्टर महमूद एजाज का मजीद कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी गुज़श्ता रोज दौरा राजनपुर के दौरान जानवरों को रेस्क्यू करने पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। मुल्तान में रेलवे के आर्जी बतर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का कैंट स्टेशन पर प्रेम यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक। सदर प्रेम यूनियन का कहना था कि 26 अगस्त को 50% से ज्यादा मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे। मुलाजमीन के घरों में फाके शुरू हो गए हैं। मुतालिबात तस्लीम न किए तो रेलवे हेडक्वार्टर का घेराव किया जाएगा। मुल्तान में रेलवे के आर्जी बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक। सदर प्रेम यूनियन का कहना था कि 26 अगस्त को 50% से ज्यादा मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। और अब बात करेंगे मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। लाखों की लागत से लगे ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना किए जा सके। अहम शाहराहों में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। मजीद असला जानते हैं ओनाबाद से। आज बिल्कुल अगर हम बात करें, इस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रात को 11 बजे के बाद जब लॉन्ग व्हीकल्स और बड़ी ट्रैफिक जो है उन्हें शहर में एंटर होने की इजाज़त मिलती है, तो आप बिल्कुल इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन ताहिर अब्बास आपको दिखा सके, जब ये बड़े ट्रक जो हैं शहर में एंटर होते हैं तो ये ट्रैफिक जैम का बाइस बनते हैं, क्योंकि मुल्तान शहर की इंतज़ामिया जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। मुल्तान में जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं उन्हें फाल करने में। ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हैं, वो भी गैर फाल हैं। 9 नंबर चौक पर मौजूद हैं, वो भी गैर फाल हैं। कचहरी चौक पर मौजूद हैं, वो भी गैर फाल हैं। और इसके साथ साथ नवा शहर चौक पर मौजूद हैं, वो भी गैर फाल हैं। और एसपी चौक जैसे अहम तरीन चौक पर भी मौजूद हैं, और वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं। इस वक्त जो है हम नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने की वजह से बेहंगम ट्रैफिक जो है हमें दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो है 11 बजे के बाद जो है अब लॉन्ग व्हीकल्स जो हैं इस वक्त हैवी ट्रक जो है शहर में जब एंटर हो रहे हैं वो यहाँ पर ट्रैफिक जैम का बाइस बने, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं और यहाँ कोई ट्रैफिक का निज़ाम जो नहीं है, दरम बरम दिखाई दे रहे हैं। और जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं उन्हें भी रात 11 बजे के बाद जो है छुट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रेगुलेशन जो है रात 11 बजे के बाद नहीं होती। अब जो है रात 12 बजे का जो टाइम है इसमें जो है ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने की वजह से पूरे शहर में जो है ट्रैफिक हादसात भी उसमें भी इजाफा हो जाता है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो रेगुलेट भी सही तरह से नहीं होती। तो तमाम सूरत हाल पर जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है उसे चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो है उन्हें जल्द से जल्द फाल किया जाए, ताकि जो है ये ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर ना हो और उसे जो है सही तरह से रेगुलेट भी किया जाए। नॉर्दर्न बाईपास पर और दीगर जितने भी चौक हैं, अहम तरीन चौक, उन पर जो है ट्रैफिक सिग्नल लाखों रुपए लागत से जो लगाए गए हैं उन्हें। शुक्रिया। और अब बात करेंगे बहावलपुर शहर के इकलौते सहूलत बाजार में 6 रोज से बिजली गायब। फ्रिज बंद होने से हजारों मालिक की अशिया खराब हो गई। 165 दुकानों में बिजली ना होने से ताजरों का कारोबार ठप होकर रह गया है। बहावलपुर में मैपको हुकाम या मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली। शहर के इकलौते सहूलत बाजार में 6 दिन से बिजली मुअत्तल। मुतअद्दिद फ्रिज बंद होने से हजारों मालियत की अशिया खराब हो गयी। 165 दुकानों की बिजली बंद होने से ताजरों का कारोबार ठप होकर रह गया है। गारमेंट्स और सिलाई के कारोबार से मुंसलिक ताजिर गुज़िश्ता 6 रोज से बेरोजगार हैं। शदीद गर्मी और हब्स में मॉडल बाजार के अंदर बैठना मुहाल हो गया।
बिल्कुल बेरोजगार हैं और सड़कों पर निकले हैं। हमारे तो बच्चे भूखे रह गए हैं 6 दिन से। कमेटी भरनी है, हम कमेटी से आवाज आ रहे हैं। ये सामने देखें, ये फ्रीजर बंद पड़ा हुआ है। इस भाई के वो जूस जो होते हैं वो डब्बे पैक वो खराब हो गए हैं। मेरा तो काम भी इस मशीन से है। आज ये मशीन लेकर आया हूँ हाथ वाली, ताकि बच्चों का रोजगार कमा सकूं। ताजरों का कहना था कि एक हफ्ता पहले बारिश से मीटर खराब हुआ, लेकिन ताहाल बिजली बहाल नहीं की गई। खरीदार शाम के वक्त सहूलत बाजार का रुख करते हैं, मगर शाम ढलते ही सहूलत बाजार अंधेरे में डूब जाता है। बिजली से चलने वाली मशीन की बजाय हाथ वाली मशीन लेकर आते हैं। हुकूमती इदारे में बिजली ना होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। पिछले 6 दिन से यहाँ बिजली नहीं है। एक मीटर जला हुआ है, वो हमें मैनेजर कहता है कि हम जा रहे हैं, डिमांड नोटिस भर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के इदारे में ये काम है तो लोकल क्या होगा। सहूलत बाजार के ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर बिजली बहाल करवाई जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में लोहा मार्केट के ताजर कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। सदर लोहा मार्केट शाहिद शकूर ने एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन ने लोहा मार्केट में मस्जिद की जगह पर कब्जा खत्म करवाने का मुतालबा किया। मुल्तान में कब्जा माफिया ने मस्जिद को भी ना बख्शा। लोहा मार्केट के ताजरों ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सदर लोहा मार्केट शाहिद शकूर ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। इस मौके पर उनका कहना था कि लोहा मार्केट के ताजिर करीम नवाज ने लोगों की जायदादों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं। मस्जिद से मुल्हिका गली और मस्जिद की छत पर भी करीम नवाज ने कब्जा किया हुआ है। 2 रोज पहले भी यहाँ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ, क्योंकि लोहा मार्केट का एक बदनाम ज़माना दुकानदार है करीम नवाज उर्फ मिट्ठू, जो ट्रंक पेटियों का कारोबार करता है। उसने लोगों की प्रॉपर्टियों पे नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं। एक गली शारे आम है इलाके में, नमाजियों का आम दो रफ्त है। उसने उस गली पर भी कब्जा कर लिया जो कि मस्जिद से मुल्हिका बैक साइड पर है। एसपी सिटी हसन रजा खाकी ने कहा कि पुलिस ने बरवक्त मौका पर पहुंचकर मस्जिद से मुल्हिका गली को खुलवाया है। मुल्जमान के खिलाफ थाना हरम गेट में FIR दर्ज है और मुल्जमान को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बरवक्त यहाँ पर मौके पर पहुंचकर ये जो शरेआम जो गली बंद की हुई थी इसको खुलवाया गया। 2 जो मुल्जमान है अल्लाह नवाज है, उसका जो बेटा है उसको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई और इस वक्त रिमांड जिस्मानी के ऊपर है। मजीद जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे ताजरान के, हम उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। जिलाई सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स शेख ताहिर अमजद का कहना था कि बदकिस्मती से ऐसी काली भेड़ें ताजरों में मौजूद हैं जिन्होंने मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया। इस तरह की काली भेड़ें हम ताजरों में मौजूद हैं जिन्होंने मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ऐसे मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुजाहिरीन ने कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में सब्जियों फलों की सरकारी कीमतें लागू ना हो सकें। खुद साख्ता महंगाई से शहरी भी परेशान। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। शहर ओलिया में अशिया खोरनोश की मार्केट्स में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। सरकारी निर्खनामा में अदरक 580, लहसुन 428 और लीमू 438 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं, मगर मार्केट में अदरक और मटर 600, लहसुन 480 और लीमू 400 रुपए फी किलो हैं। सरकारी निर्खनामा में प्याज 108, टमाटर 96, हरी मिर्च 86 और आलू 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 160, टमाटर, हरी मिर्च और आलू 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मौसमी सब्जी टिंडे 320, भिंडी 240, अरवी 200, कद्दू 160 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। महंगाई ने गरीब को फलों के जायके से भी महरूम कर दिया। अंगूर 400 से 600 और सेब 200 से 400 रुपए फी किलो हैं। अनार 300 से 500, सफेद चौंसा आम 200 और मौसमी चौंसा 320 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। जामुन 400, पपीता 320, नाशपाती 300 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन हैं। सरकारी निर्खनामा के मुताबिक चिकन 595 रुपए फी किलो और अंडे 294 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियों फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रंगपुर में चौक सरवर शहीद रोड की तामीर का काम जारी। बारिश ने ठेकेदार की नाअहली का पोल खोल दिया। सड़क किनारे टफटाइल को बगैर लेवल के ऊंचा लगा दिया।
रंगपुर में 1 अरब 39 करोड़ रुपए के फंड से चौक सरवर शहीद रोड की तामीर का काम जारी है। सड़क के अतराफ बरसाती नाले और टफ टाइल्स के काम में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। पहली बारिश ने ही ठेकेदार की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़क के किनारे टफ टाइल को बगैर लेवल के सड़क से ऊंचा लगा दिया गया। शहरियों का कहना था कि बारिशी पानी की निकासी न होने की वजह से टफ टाइल और बरसाती नाले जगह जगह से मुतासर हो गया है। पानी की निकासी न हुई तो अवाम के टैक्सों से तामीर की गई सड़क जल्द नकारा हो जाएगी। कोई आला हुकाम का बंदा, कोई अफसर यहाँ पे चेक करने नहीं आया। ये ठेकेदार की मुबैना गफलत है, नाअहली है, जिसकी वजह से ये रोड बर्बाद हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये रोड मुकम्मल हुआ है, आप जाके देखें, पहली बारिश में रोड जो है वो टूटना शुरू हो गया। शहरियों का कहना है कि 20 साल बाद चौक सरवर शहीद रोड की तामीर की जा रही है, मगर ठेकेदार की नाअहली के बाद सड़क बारिशी पानी से मुतासर हो रही है। अफसरान एसी कमरों तक महदूद हैं, किसी ने मौके पर आकर चेक नहीं किया। 20-30 सालों के बाद तकरीबन ये हमारे रोड का फंड हुकूमत ने मंजूर किया है 1 अरब 20 करोड़ रुपए का, लेकिन आगे से हमारा ठेकेदार इतना नहल है, सुस्त है और इतनी उसने गफलत बरती है कि इस रोड का ये हाल देख लें। कई दुकानों के आगे उसने रैंप बना दिए हैं, सफारशी काम कर रहा है, किसी से पैसे लेकर बनवा दिए हैं। अच्छा, कई जगह पर ये टफ टाइल ये सड़क से ऊपर लगा दिए, तो पानी का पता नहीं कैसे क्रॉस होगा। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर टफ टाइल को लेवल के मुताबिक लगवाने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर।